लखनऊ इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स इशराए लखनऊ सब चैप्टर के तत्वावधान में शनिवार 20 दिसंबर को होटल क्लार्क अवध में ऊर्जा संरक्षण और डिकार्बोनाइजेशन विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में संस्था के पदाधिकारी, शहर के प्रमुख वास्तुविद, अभियंता एवं तकनीकी विशेषज्ञ बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से सतत विकास के मार्ग को रेखांकित करना रहा। सेमिनार में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि ऊर्जा संरक्षण का मतलब विकास को रोकना नहीं, बल्कि ऊर्जा की बर्बादी को योजनाबद्ध ढंग से कम करना है। इसके लिए केवल ऊर्जा बचत पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऊर्जा के स्रोतों में व्यापक बदलाव और डिकार्बोनाइजेशन को अपनाना आवश्यक है। वक्ताओं ने बताया कि परिवहन, उद्योग और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर ही पर्यावरणीय संकट और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटा जा सकता है। इस अवसर पर यूपी पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल यू सिंह मुख्य अतिथि रहे, जबकि यूपी राजकीय निर्माण निगम के महाप्रबंधक समीर गुप्ता एवं एकेटीयू की प्रधानाचार्य वंदना सहगल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। सेमिनार में आईआईटी रुड़की में स्वर्ण पदक से सम्मानित वास्तुकार अशोक कुमार, संदीप गोयल सहित कई विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। एम्बियंस सॉल्यूशन के निदेशक समीर श्रीवास्तव ने सेमिनार का सफल संचालन किया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। I would just like to take 1 minute to kind of introduce the people or other people, mention of the people who have come all the way from Delhi and be part of this wonderful session of technical discussion. So since I've been knowing fortunately now Mr. Abid Hussain, who is a legend in this field, Mr. Siddiqui is also another person quite expert and well placed. And of course, Mr. Rafija's forms related to Mr. Ashish and Mr. Kamini. All the people I have had a chance to have discussion and interaction earlier also. And fortunate enough to have the same situation today. So my talk is going to be focused towards the fact that in today's context when we are striving very hard towards achieving the actual mission and goal of decarbonization in the environmental sector and everything. The process of how to achieve it and how to do it, that's more important. And as an architect, I have noted that many of my colleagues, juniors, seniors, whoever you call it, as an architect community, we generally believe that we are the designers and we design the building and then thereafter we kind of assign this task to our consultants, our team of HVAC who are designing the project. And probably take the back seats in terms of really getting much into it. But that should not be the case. And so since it is obviously I am not trained to be HVAC engineer or something, but the kind of concern that we are all facing in terms of decarbonization, a challenge that motivates me
that encourages me and probably that gives me a way for thinking more and more and trying to be concerned about this particular cause. And therefore, all these couple of slides that you see, the very, very basic intent of showing all this is to ensure that whatever areas we talk about, especially the net zero buildings, the green buildings, the sustainable buildings, these are the ones that are going to be our cause of concern. As very rightly mentioned by Abhijit ji, that here like in case of general buildings or the buildings being built in general manner, supposing the consumption per square feet, let's say or as an example, like here, fortunately enough, we've got all kinds of people, the leader represent or be the chillers and everything. रोल स्टार्ट सर। देखिए, मेरा नाम वलीउल्लाह सिद्दीकी है और मैं पिछले दिल्ली चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ। जी। हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं, यहाँ पे एक संगोष्ठी है। हमारे साथ जो लखनऊ चैप्टर के प्रेसिडेंट है हरीश साहनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अवस्थी जी हमारे कार्यकारी उसमें लखनऊ चैप्टर में है। तो आज का जो हमारा आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो एनर्जी कंजर्वेशन और डीकार्बनाइजेशन के ऊपर हमने रखा हुआ है कि किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन किया जाए और किस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग और जो पॉल्यूशन की और जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, टेम्परेचर राइज है, फ्लडिंग है, इसके ऊपर ही संगोष्ठी रखी गई है। और आज ये पूरे लखनऊ के जितने भी सीनियर लोग हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जितने भी इंजीनियर्स हैं, उन सबको बुलाया गया है ताकि उनको एजुकेट किया जाए और हमारी चैप्टर जो है वो उससे जोड़ा जाए, नए मेंबर्स बनाए जाए, नए प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाए। और आपको पता है लखनऊ तो सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ तो इतनी पोटेंशियल है सब चीज़ों को लोगों को जानने की, जागरूक करने की। इसके लिए हम यहाँ दिल्ली से लखनऊ आए। लखनऊ चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ। तो सर ने हमारे बोला है वही है कि मतलब पर्यावरण के ऊपर ज़्यादा फोकस है, इस पर ऑर्गेनाइज के ऊपर जो है फुटप्रिंट में हो, ज़्यादा ज़्यादा जितने भी हो पेपर वर्क कम हो, उसके ऊपर जो है वर्क चल जाता है। जैसे कि पर्यावरण और पॉल्यूशन पे मतलब जो है वर्क हो रहा है। दिल्ली में से सर हैं, दिल्ली में तो आज ही पेपर में दिया था कि दिल्ली में न्यूज़ में भी था कि मतलब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है सारे, तो उसके पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो है जी वही कार्यक्रम है, उसके लिए संगोष्ठी सबको अवेयरनेस दी जाएगी कैसे कंट्रोल किया जाए पर्यावरण को। तो आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से कौन कौन यहाँ पे मतलब वक्ता है, कौन कौन से आमंत्रित लोग हैं यहाँ पे जो वक्ता है? मतलब दिल्ली से हमारे आए हैं जी, आर्किटेक्ट्स हैं अशोक कुमार जी, वो है संदीप गोयल साहब हैं दिल्ली से, और यहाँ पे संदीप निर्माण निगम के GM हैं संदीप सर नहीं हर जगह बढ़ रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि जो है प्रदूषण और पॉल्यूशन पे काम क्या करना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए? मेरा नाम सुशांत अवस्थी है और जो पॉल्यूशन इस समय बढ़ रहा है उसी पे एक गहन विचार विमर्श किया जाएगा आज के प्रोग्राम में। तो हमारे वलीउल्लाह सिद्दीकी सर हैं इस प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं। तो हम लोगों का यही एक मानना है, सोचना है कि आगे वाली जनरेशन के लिए हम लोग किस तरीके से क्लीन एंड फिल्टर्ड एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकें। मेन मुद्दा हमारा आज के लिए एनर्जी कंजर्वेशन एंड डीकार्बनाइजेशन। ये ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए जो उचित कदम हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हों, वो उनको फॉलो करें। उसी पे आज हमारा प्रोग्राम। ओके। और आर्किटेक्ट फ्रॉम लखनऊ, ऑल्सो वी आर मेंबर ऑफ जो लखनऊ चैप्टर का विषय है, हम लोग मेंबर हैं। और इस एनुअल इवेंट के बारे में काफ़ी इसको प्लान किया गया। और द आइडिया ऑफ दिस इवेंट इज़ टू काइंड ऑफ एजुकेट, सेंसिटाइज and motivate the people who are associated with the protection of environment and also the process of decarbonization। एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम लोग बहुत एफर्ट्स करते रहते हैं, लेकिन इफेक्टिवली उसको हम कैसे अचीव करें इसके बारे में जो हमारे डिफरेंट स्पेशलिस्ट दिल्ली से और बाकी डिफरेंट सिटीज़ से और लखनऊ से
सारे लोग यहाँ पर आज सम्मिलित हुए हैं और इसमें इन सब पे चर्चा होगी, क्योंकि जब हम डिकार्बोनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें कई सारे पहलू हैं। हम कैसे वाटर को कंजर्व करते हैं, कैसे हम सन के साथ जो पैसिव एनर्जी है उसको हम कंजर्व करें, उसको प्रोड्यूस करें। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, जैसे एक बिल्डिंग है तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर जो यूनिवर्स में अवेलेबल है तो उसमें उसके ऊपर जो बिजली का खर्चा है वो स्क्वायर फीट के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो रफली 0.7 वाट पर स्क्वायर फीट का एवरेज आता है। उसी बिल्डिंग में अगर हम एसी लगा देते हैं तो वो हो जाता है रफली 3 वाट्स पर स्क्वायर फीट। इसका मतलब है कि हम बिजली अगर खाली यूज़ करें तो जितना भी कंजम्पशन ऑफ पावर है या इलेक्ट्रिकल लोड है उसका 4 टाइम्स और बढ़ जाता है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि एयर कंडीशनिंग वन एक्टिविटी, एयर कंडीशनिंग का जो लोड है वो इतना ज़्यादा होता है कि हमें पूरे एनर्जी की कंजर्वेशन की प्रोसेस है तो बहुत बड़ा सेटबैक लगता है। लेकिन ये भी आवश्यक है कि हम अगर डे टू डे लाइफ में देखते हैं तो स्पेस की शॉर्टेज होती जा रही है। पहले बहुत बड़ी जगह होती थी, अब जगह कम होती जा रही है, तो ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ता है, स्पेस कम होता जा रहा है। तो चैलेंज ये है कि हमें कम स्पेस, ज़्यादा लोग बैठेंगे तो एयर कंडीशन करना ही पड़ता है। इस तरह से जो ओवरऑल एम्बिएंट टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का वो बढ़ता जा रहा है। पहले आप जानते हैं एसी में 1-2 डिब्बे होते थे ट्रेन में, आजकल सारे फुल एसी ट्रेन हो रही हैं। इसका मतलब है कि जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि जो कंजम्पशन ऑफ एसी के थ्रू पावर है बहुत बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस तरह से एफर्ट्स करने होंगे कि पूरी प्रोसेस ऑफ एयर कंडीशनिंग में अगर हम ड्रास्टिक सेविंग कर लें अप टू 50%, 60%, और जो कि अब पॉसिबल हो गया है। टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, रिसर्चेज आ गई हैं, उनके इनोवेशंस आ गए हैं, उसके माध्यम से हमने जो सेविंग की है तो वो इतनी वैल्यूएबल एंड मीनिंगफुल है कि रफली 50% तक की सेविंग आ गई है पावर में। और उसकी वजह से ये हम जो डिकार्बोनाइजेशन के प्रोसेस उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो ये उसका उद्देश्य है। आज यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स आए हैं वो अपने विचार रखेंगे, कुछ नए और आइडिया जो रिसर्च हैं उनके ऊपर जो भी इनोवेशंस हैं। सिमिलरली जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एयर कंडीशनिंग के, उनके डिस्प्ले भी बाहर हैं, आपने देखा होगा। उससे लोग बेनिफिट होंगे और उसका जो नॉलेज है वो आएगा सबके पास। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सक्सेस ऑफ दिस इवेंट। So that is all, and I wish all the best for the success. And also I wish people at large should get the knowledge and benefit of this event. ओके जैसे कि बात है, आज संगोष्ठी भी एयर पॉल्यूशन पे है। दिल्ली चैप्टर से भी बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, और दिल्ली में भी समय एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आज न्यूज़ में भी था कि दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है, स्कूल कॉलेज और सब बंद किया है। क्या कहना चाहेंगे, इसको किस तरह से जो है कंट्रोल किया जाए? कंट्रोल इसी तरह होगा कि डिकार्बनाइजेशन जब तक हम नहीं करेंगे उसके तब तक जी उसी के जो प्रोग्राम हम लोग इसी उस पर करते ही हैं। जो हम लोग का ईश्वरीय चैप्टर चल रहा है, जो ईश्वरीय का पूरी ट्रांजिशन करती है वो इसी पे ही फोकस करते हैं। ओके यस। Hi, I am Ashish Jain. I am partner at Aeon Building Consultants. I am coming from Noida. This event today of Ujavaran, which is organized by ISHRE Lucknow chapter and ISHRE Delhi chapter, was basically to ensure energy efficiency and the decarbonization concept is absorbed by the people. There are eminent speakers who have come here. There are different industry people who have gathered here in terms of the manufacturers, the trading companies, consultants, architects, who have come together to understand this concept and also discuss in length about how can these concepts be incorporated in the building, because the issues that we are facing today about the environment, about the climate change, about carbon emissions, pollution, whatever contribution building industry can make, this is a set of people who have gathered here to discuss and do something about it.
your company expertise? So our company deals into the MEP design and sustainable designs for the building. My own expertise is into the sustainability area, where we work on concepts like energy conservation, water efficiency, indoor air quality, green buildings, healthy buildings, low carbon buildings, net zero concepts. These are all the things which are something that we are providing as a design service. Any message for New Year? New Year is something which always comes with new hopes, and the hope that we have is from the industry, that people, the way they have been acting and the way they have been living their lifestyles, I think there has to be some sensitivity towards the environment. It is not just one person who can do it. Collective efforts of all the people in this direction can take effect. Thank you. तो कार्यक्रम है वो पॉल्यूशन के ऊपर है, मतलब जैसे कि दिल्ली में भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आप लखनऊ में भी हैं, तो क्या मतलब करना चाहिए, मतलब इसके बारे में जो बहुत सारे वक्ता भी यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप पूरा परिचय देते हुए बताएं कार्यक्रम में। सर, मेरा नाम संदीप गोयल है, हम लोग MEP कंसल्टेंट्स हैं। नहीं, हम लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एडवाइस करने की। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एंगेज रहते हैं, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, मॉल्स। तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ हमें ये समझने की है कि प्रदूषण का, जैसा आपने नाम लिया, प्रदूषण में दिक्कत ये आ रही है कि पार्टिकुलेट मैटर के बारे में आज सब लोग जानते हैं। हम लोग अगर पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर फोकस करते हैं और अगर हम अपने घर के दरवाजे, खिड़कियाँ सब बंद कर लेते हैं, तो हमारे को दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है, जैसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो एक तरफ हमने पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल किया, दूसरी तरफ हम लोगों ने कोशिश करके जैसे ही इसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करी, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो हम दोनों तरफ से हमें इन चीज़ों को सॉर्ट करना है, इनको रिजॉल्व करना है। एनर्जी कंजम्पशन आजकल सिस्टम्स की बहुत बढ़ गई है, तो हम लोगों को एक जागृति पैदा करनी है ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे कि किस तरह से सिस्टम्स को लगाया जाए, और सिर्फ एक यूनिलैटरल अप्रोच में सिर्फ पोल्यूशन को ही ना देखा जाए, पर कार्बन डाइऑक्साइड की भी कॉन्सेंट्रेशन ठीक रहे। तो आज की हमारी जो आज की कॉन्फ्रेंस है, वो पूरी की पूरी इस पोल्यूशन से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंसिवली एयर कंडीशनिंग सिस्टम और वेंटिलेशन सिस्टम को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स यहाँ पर बात करेंगे। जो संगोष्ठी में जो भी वक्ता आए हैं, मतलब कहाँ से, लखनऊ से, बाहर दिल्ली से, और भी कहाँ से लोग यहाँ पे हैं? सर, हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है और इसमें दिल्ली चैप्टर का बहुत बड़ा सहयोग है, तो हम अपने दिल्ली चैप्टर के यहाँ से उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं उन लोगों को हमने एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया है। तो अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पर सारे एक्सपर्ट्स नॉर्थ इंडिया की तरफ से ही आए हैं, और कुछ हद तक सच माने तो नॉर्थ इंडिया के अंदर ये हमें पोल्यूशन की दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये जो अपनी जो हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस करी है उसी को ध्यान में रखते हुए एक बार पूरा परिचय दे दीजिए एक बार से। आपके बारे में? हाँ जी। मेरा नाम संदीप गोयल है, हम लोग MEP कंसल्टेंट्स कहलाते हैं जी। हमारा ऑफिस दिल्ली में है, एंड हम लोग इस लिहाज से अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स में एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं जी, जिसमें हम लोग अलग अलग आर्किटेक्ट्स, ओनर्स के थ्रू एंगेज किए जाते हैं। और मेरा एक और रोल जो हम अदा करते हैं, मैं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया में कमेटी मेंबर भी हूँ। तो हमारा एक बहुत बड़ा रोल और हो जाता है कि ना केवल हम प्रोजेक्ट्स में काम करें, पर हम लोग जो कोड्स और स्टैंडर्ड्स हैं देश में, जो लोग पढ़ते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी इम्प्रोवाइजेशन में भी हमारा काफ़ी योगदान रहता है। एक और एसोसिएशन है हमारी, इशरे के अलावा हम लोग एशरे के साथ भी संबोधित हैं। तो एशरे के लिए भी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंजीनियर्स के साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं। तो ये सारे हम लोग एक थिंक टैंक्स हैं जो मिल करके इस सारी सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं और बात करते हैं। ओके, थैंक यू। द्वारा जो है एयर पॉल्यूशन पे जो है आज संगोष्ठी रखा गया था कार्यक्रम, आप भी यहाँ पे इनवाइट थे, मतलब आप भी यहाँ पे आए, बहुत सारे वक्ता यहाँ पे आए, मतलब और इसके बाद दिल्ली चैप्टर्स और लखनऊ चैप्टर्स के लोग यहाँ पे थे। क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम एक नॉलेज शेयरिंग सेशन था जी, जिसमें बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किस तरह से बिजली बचा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं, हवा अच्छी रख सकते हैं। तो उन सब को लेके यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट रखे गए थे, कुछ टेक्नोलॉजी आई है, कुछ कंसल्टेंट आर्किटेक्ट्स आए हैं, वो सब यही बताया। सर, एयर पोल्यूशन जैसे कि दिल्ली में इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है, दिल्ली चैप्टर से भी लोग यहाँ पे आए हैं, लखनऊ में भी एयर पोल्यूशन है, तो मतलब क्या करना होना चाहिए जिसकी वजह से पोल्यूशन को रोका जा सके, या इस तरह से क्या? कोई भी चीज़ रोकने
जहाँ से उत्तेजित हो रही है उसको कम किया जाए। जी जैसे गाड़ी आग वो आग जल रही है, सब हो रहा है, उसकी वजह से होता है। पर आप हो ही रहा है, उसको रोक तो सकते नहीं, गाड़ी चलाएंगे लोग। जी तो आप कृपया ये कर सकते हैं अपने घरों में ऐसा एसी लगाएं जिसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम अच्छा हो, या एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम लगाएं जिससे एटलीस्ट आप अपने घर में रुके तो जितनी देर आप सोते हैं आपको एक अच्छी साफ हवा दें। लोगों को आप अपने चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से क्या मतलब जो है एडवाइस देना चाहेंगे कि मतलब किस तरह से जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, और किस तरह से जो मतलब पॉल्यूशन को हम एक ही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जी हम कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें करके एक बड़ी चीज़ होती है। जी अगर हर इंसान लखनऊ में या पूरी दुनिया में एक एक पेड़ लगाए अपने घर के आगे, उससे क्या रहेगा, खाद जो है रुकी रहेगी, ओस गिरेगी, पानी मॉइस्चर बढ़ेगा, तो अपने आप पॉल्यूशन कम होगा। ये सब पॉल्यूशन सिर्फ गाड़ी की वजह से नहीं है, ये जो हमने पेड़ काटे हैं या दुनिया में जो भी हमने जिस तरह से हम कर रहे हैं उसकी वजह से। तो पहले तो ग्रीनरी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। तो हमें सीमेंट के जंगलों से थोड़ा सा हट के ग्रीनरी लगानी पड़ेगी। ओके सर, एक बार इंट्रो दे दीजिए अपना परिचय। मैं राजीव जंगला हूँ, जी मैं हिटैची बॉश होम कंफर्ट कंपनी से हूँ और मैं वहाँ पे एज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू। I'm so happy to be here amongst all of you, and I think some of the previous presentations that we had, thankful to Mr. Ashok Kumar for giving excellent presentation on the journey of sustainable and energy efficient building. I think that sets the theme very correctly for the topic that I am going to present. And the topic that I have basically talks about the power of zero, design for a regenerated future, which is the future of the buildings. And I thought when we are gathering here, it will be a right platform to discuss with you and show you where the buildings are actually located. Before I get into details, I would like to talk about zero itself. I think many people have got different interpretations of zero, and so correctly also is. Many of us think zero is nothing, but yet it is almost everything, because one zero can make a lot of difference to any figure, and that's where the value of zero is. It is also something which helps us to maintain a perfect balance, be it in mathematics, be it the buildings, be it anything. It is actually helping us to maintain the right balance, and that's where it is gaining a lot of importance, not only in the maths but also in the buildings context that we are doing today. Just a little fact check and a knowledge test for all of us. When we talk about zero, where was it invented? Please. Very good. It is definitely invented in our own country. And who invented this? That's correct. He is one of the great mathematicians and astronomers of India who has invented zero. When was it invented? बहुत साल पहले. Absolutely correct answer. So in 6th century AD, during the period of